देखिए, पहले तो आपको जैसे अभी स्वतंत्र हमारा देश हुआ था, अब एक ये जीएसटी भी एक हमारे देश में व्यापारियों के लिए, उपभोक्ताओं के लिए एक नया स्वर्णिम काल है। आपने सुना होगा लंका हमारी बनी थी, स्वर्ण की थी, सोने की थी, मंदिर कई हमारे सोने के बने हैं। आज से हमारे व्यापारी और उपभोक्ताओं के लिए भी एक स्वर्णिम प्रदेश और स्वर्णिम राज्य आ गया है। तो आप बिल्कुल मान के चलिए, इसमें उद्योगपति, मैन्युफैक्चरर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए ईज ऑफ डूइंग जो हमारा कॉन्सेप्ट था, मेड इन इंडिया, और जो हमारा स्वदेशी इंडिया का कॉन्सेप्ट था, अब ये बहुत जल्दी हमारा मोदी साहब ने, हमारे प्रधान सेवक साहब ने जो इंटरनेशनल स्थितियों को देखा भापा, उसके हिसाब से ये बिल्कुल निश्चित है कि आप मान के चलिए हमारा उपभोक्ता भी खुश रहेगा, हमारी सेविंग्स बढ़ जाएंगी। अब बहुत अच्छी शुभकामनाएं आप। The thrust of the government has been to help the industries which are agriculture related, agro based, affecting the common man, and also the labor intensive industries. Now why so? Because the common man should not be burdened with high cost of goods because of the taxation. Second, the industry will be getting a boost for producing more, and automatically their cost will come down, and because of the economic cycle it will also give the benefit to the country as a whole. The industry had slowed down a bit because the middle class consumption had not gone up as expected. Now that is also likely to go up. The agriculture, which is one of the mainstay of our economy, that is also going to be benefited by bringing more goods in the lowest category and also the exempted category, and also the packaged food, which is also going to substantially come down in the process. Now they will all come into the 5% category from 12% category. So that will also give, because after all the input is agro based. So the other side of it is that the insurance, which was earlier having the GST component of 3%, now that will be coming in the exempted category. The objective being that the country wants that entire population to be covered by insurance, or to expand the base. Now with this there will be further scope. As you know, the life insurance, the general insurance, and the health insurance, which is a priority for the government to provide secured health services for all, I think that will also get a boost, and that has been the demand also from various segments. Yes, sir. On behalf of the 36 lakh farmer families affiliated with the Amul Dairy Cooperative Movement in Gujarat and more than 10 crore families associated with the dairy industry of the country, we are thankful to Honorable Prime Minister of India and Honorable Finance Minister of India for this landmark decision of reduction in GST rates of most food items, and particularly the dairy product categories. So more than 30 different dairy and food product categories that we are associated with have seen a significant decline in the GST rates. We are confident that this would lead to increased consumption of all these important food items of the dairy product category, and this will lead to a sustained growth in the incomes and livelihood of millions of milk producers associated with it. We are really thankful for this welcome step, which has come in conjunction with the recent reduction in income tax rates also, which means more money in hands of the consumers and thereby an assured future for millions of milk producers of the country and all the farmers of the country. देखिए, अगर आप इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखें तो डेफिनेटली वो देगा। जैसे मैंने कहा कि उत्पादन बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, तो वो सारा भारत में बढ़ेगा। तो उस हिसाब से भारत में जब ज़्यादा चीज़ें बनेंगी तो हम आत्मनिर्भर भी बनेंगे। और जो आपने ईज़ ऑफ लिविंग की बात करी, अगर हमारे आम आदमी के पास थोड़ा सा हाथ में ज़्यादा पैसा होगा तो उससे वो अपनी डेली लाइफ में थोड़ी आसानी ला सकते हैं। एक तरफ सरकार डिजिटलाइजेशन कर रही है जिससे काफ़ी आसानी आई है, और दूसरी तरफ अगर हाथ में अगर थोड़ा सा अगर पैसा ज़्यादा आता है तो हर आदमी की, आम आदमी की नहीं, हर आदमी की लाइफ इजी हो ही जाती है।
देखिए मोदी सरकार ने एक तो जो वायदा किया था हमारे प्रधानमंत्री ने खुद 15 अगस्त को, वो पूरा किया है। बट उससे ज़्यादा, जैसे आपने कहा, आई थिंक आम आदमी के लिए और कुछ हमारे किसानों के लिए काफ़ी राहत की बात है। रेट तो अब आप लोग को सभी को पता है क्या है, बट उसका आप इफ़ेक्ट देखिए कि आम आदमी अपना कंजम्पशन बढ़ाएगा जब चीज़ों के दाम कम होंगे, और जब दाम कम होंगे, कंजम्पशन बढ़ेगा, तो इंडस्ट्री की प्रोडक्शन बढ़ेगी, उनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगी, और जब इंडस्ट्री ज़्यादा उत्पाद करेगी तो वो आगे जाके निवेश भी करेंगे ताकि और उत्पादन हमारे देश में बढ़े। तो इसका अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखें, उसमें बहुत और चीज़ें भी हैं कि जब उत्पादन बढ़ता है, इंडस्ट्री निवेश करेगी, आपका सप्लाई चेन लॉजिस्टिक सेक्टर जो है उसका भी बिजनेस बढ़ेगा। अब जैसे फल सब्जी खाने की चीज़ों के लिए अगर मूवमेंट बढ़ेगा तो सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स, कोल्ड चेन्स के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। और देखिए सरकार ने ट्रैक्टर से लेके ट्रक तक सबके ऊपर जीएसटी रेट्स को थोड़ा रैशनलाइज किया है। तो इसका जो पूरा एक इम्पैक्ट है वो कहीं ज़्यादा होगा अगर हम रेट्स के बियॉन्ड देखें। दूसरी तरफ आम आदमी के लिए आप देखिए एक बहुत बड़ी चीज़ जो हुई है वो है कि इंश्योरेंस प्रीमियम के ऊपर जीएसटी हटा दिया गया है। हमारे देश में स्पेशली आम आदमी के लिए इंश्योरेंस लेना काफ़ी महंगा पड़ रहा था। अब इसके दो नतीजे होंगे, एक तो वो इंश्योरेंस लेंगे, दूसरा जब ज़्यादा लोग इंश्योरेंस लेते हैं तो हो सकता है कि इंश्योरेंस कंपनी भी ज़्यादा प्रीमियम ना चार्ज करे, क्योंकि अभी उनको अपनी कॉस्ट निकालनी होती है। जब बहुत सारे लोग इंश्योरेंस लेंगे तो उनका प्रीमियम बढ़ेगा और हो सकता है कि एवरेज प्रीमियम भी कम आ जाए। उससे ज़्यादा इम्पैक्ट ये होगा कि भाई आम आदमी की लिए आज की डेट में अगर इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह नहीं है तो घर में अगर एक बीमारी हो जाती थी, उनकी सारी सेविंग और अर्निंग उसमें ख़त्म हो जाती थी। तो होपफुली लोग इंश्योरेंस ज़्यादा लेंगे और अपनी एक तरीके से फाइनेंशियल सिक्योरिटी बढ़ाएंगे। तो आई थिंक ऑल एंड ऑल सरकार ने एक बहुत अच्छा मूव लिया है, और हम जो 8% ग्रोथ रेट की बात करते हैं, शायद ये सब चीज़ें मिला के हमें उसकी तरफ ले जाएंगी। आई थिंक इससे बढ़िया फेस्टिवल का बेनिफिट नहीं मिल सकता है। जो जो आम आदमी की नीड्स हैं, सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सभी सेक्टर्स में सरकार ने जीएसटी कम करी है। आई थिंक जो सरकार का जो इंसेंटिव था कि हर आदमी के हाथ में ज़्यादा पैसा रहे फेस्टिवल टाइम में, तो डेफिनेटली हर आदमी के हाथ में पैसा ज़्यादा रहेगा। कॉमन लेवल चीज़ें जो हैं उन पे टैक्स काफ़ी कम हुआ है, जो नंबर ऑफ स्लैब्स हैं वो भी कम हुई हैं, और आई थिंक इसके अंदर काफ़ी ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के लिए भी काफ़ी अच्छा किया गया आज, ताकि जो एक जीएसटी के अंदर थोड़ा कॉम्प्लेक्स माना जाता था उसको भी काफ़ी सिंप्लीफाई करने का गवर्नमेंट का प्रयास रहा।